I am so sorry. I just on now. Very sorry. Flow में रहती हूँ, भूल जाती हूँ. Curiosity रहती है. Out of curiosity, I forgot to on it. I am so sorry. Okay, I repeat once again, just for the recording sake. Just for the recording sake. Stolen के केस में मिंट नहीं, सॉरी, सकर के केस में मिंट नहीं आएगा. ओके, मिंट इज गोइंग टू कम इन स्टोलन. यस, यहां पर मिंट है. सो मेंथा, प्रॉपर एग्जांपल ऑफ द मेंथा इज ओवर हियर. मेंथा स्पीशीज, मेंथा पाइपरेटा is the actual name of mint or पुदीना. There are various mint species which have been produced हाइब्रिड वे में, मतलब हाइब्रिडाइज करके भी बहुत सारे मिंट स्पीशीज प्रोड्यूस किए गए हैं एंड नेचुरल मिंट स्पीशीज भी बहुत सारे हैं. ठीक है. मेंथा पाइपरेटा इज वन ऑफ द हाइब्रिड स्पीशीज जिसका नाम है पुदीना एंड दैट प्रोड्यूस स्टोलन which has been confirmed by, I have confirmed it with from the proper botanical information. उसमें से मैंने कंफर्म किया कि पुदीना जो है, मेंथा जो है वो स्टोलन बनाता है, वो शक्कर नहीं बनाता है. ओके. Sucker is been very well produced by the banana plant. So this image is not going to be valid now. But yes, यहाँ पे मैंने mint इसलिए दिखाया है, that's because I told you some species of mint shows sucker and some species of mint shows stolen. So to be more precise, mentha, that is that is mentha piperata, which is called pudina, that is showing stolen. And mentha के जो दूसरे species है like spearmint and the sweet mint, ये जो है वो शक्कर दिखाते हैं. शक्कर में there is one more examples called banana. Banana plant में it produce two types of suckers. One is water sucker and one is sword sucker. दोनों में बहुत difference है. Water sucker जो है that does not show much connection with the mother plant and it has small rhizome. You can see the size of the rhizome also, that is very small over here, and the leaves are quite big. So it is just like a miniature of, it is a miniature of main plant. Okay, miniature of main plant, यानी कि जो main mother plant होता है उसका small version समझ लो, that is water sucker, but they will not grow much in stronger. अब जो sword suckers होते हैं, sword suckers are having a large rhizome wherein it is sharing the rhizome with the mother plant and it produces a leaf which is very narrow like a sword. That means the blade of the leaf is quite sharp. Okay, and that's why this sword sucker, when it grows much bigger, that is very strong. यानी कि sword suckers proper strong plant बनाएंगे, बट वाटर सकर्स उतना प्रॉपर स्ट्रॉन्ग है. इससे वाटर सकर्स जो है जब वो ग्रो होते हैं तो वो थोड़े से स्टंटेड रहते हैं, लाइक उनका छोटा ग्रोथ होता है, छोटा बनाना प्लांट बनता है, एंड स्वॉर्ड सकर जो है वो बड़े बनाना प्लांट्स बनते हैं. ओके, दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू अबाउट द बनाना. ओके, लेबलिंग करें. Everyone has written. Ma'am, I have a doubt that strawberry will come in grass. Sorry, strawberry will come in runner or stolen. Stolen, stolen. Strawberry is stolen. Pakka, pakka. Stolen. Yes, ma'am, but in the NCRT it is given that it is given with grass. That No, it is stolen. It is stolen. देखो एक्चुअली स्टोलर और रनर में कोई डिफरेंस नहीं है. ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ सारे रनर्स ही है. ओके, शक्कर के केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है. शक्कर अंडरग्राउंड है बाकी, और देखो ऑफसेट तो पानी में, लेकिन स्टोलन और रनर में ना इतना क्लासिक डिफरेंस नहीं है गाइस. स्टोलन और रनर में इतना क्लासिक डिफरेंस नहीं है. फर्क सिर्फ इतना है कि रनर जो है वो प्रॉपर सॉइल लेवल के ऊपर से मतलब प्रॉपर हॉरिजॉन्टली सॉइल को टच करके वो ग्रो होते हैं, एंड स्टोलन इज स्लाइटली रेज्ड, दैट्स इट. It is just slightly raised, that's it. Okay, so that's why like stolons are called like raised runners, मतलब जो ऊपर से थोड़ा होके जाते हैं रन. So you can place that any which is. Strawberry is a type of runner only, सिमरन, बट उसका जो ग्रोथ पैटर्न है उसको देखकर हम लोग उसको स्टोलन में डालते हैं. Yes, can we do the labeling now? Yes, miss. ठीक है, चलो.
ये जो आपको लीव्स यहाँ पे ओवरलैपिंग में दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड लीफ शीट। अच्छा, नीचे का तो मैंने लेबलिंग ऑलरेडी किया हुआ है, राइजोम मैंने डाला हुआ है। रूट्स आर एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, अब ये जो है ये लीफी शीट है, मतलब ओवरलैपिंग लीफी शीट्स जो पूरे सूडो स्टेम को कवर करता है। सो दिस जो स्टेम आपको दिख रहा है ना, द मेन स्टेम, दिस इज सूडो स्टेम, सूडो फॉल्स स्टेम, फॉल्स। It is not a true stem, it is a false stem which is made up of overlapping leaves. Okay, overlapping leaves से बना हुआ रहता है ये। It is not a true stem, true stem उसका अंदर है। ठीक है, pseudo stem. This is the flower bud. देख रहे हो आप, फ्लावर बड, इट्स प्रॉपर लाइक फीमेल, मतलब मेल फ्लावर ये होगा, ये मेल फ्लावर का बड होगा, मेल फ्लावर बड। एंड ऊपर जो आपको बनाना फ्रूट देखने को मिल रहा है, ओके, दिस इज बंच विद द प्रॉपर बनाना फ्रूट्स। सो बंच ऑफ फ्रूट्स यू कैन राइट डाउन। एंड फ्रूट्स जो है वो फीमेल फ्लावर से डेवलप होता है। फ्रूट्स आर डेवलप फ्रॉम फीमेल फ्लावर्स। एंड उसके नीचे जो यू नो बेसिकली जो मेन फ्लावर उसके नीचे, मतलब फ्रूट्स के बंच के नीचे से जो ग्रो होता है, दैट इज मेल फ्लावर। एंड रिमेंबर, मेल फ्लावर विल नॉट प्रोड्यूस फ्रूट, इट इज अ फीमेल फ्लावर। दोनों में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होता, ट्रस्ट मी। मेल फ्लावर डज नॉट ओपन एंड फीमेल फ्लावर ऑल्सो डज नॉट ओपन। ओके, नाउ ये जो आपको यहाँ पे लीफ, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर लीव्स, ओके, बनाना लीव्स। अब ये जो आपको यहाँ पे लीफ की डंडी दिखाई दे रही है, दीज आर कॉल्ड पिटियोल। पिटियोल, लीफ की डंडी, पिटियोल, ओके, लीफ की डंडी। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, दिस, जहां से बहुत सारे लीफ पिटियोल्स अराइज हो रहे, दिस इज कॉल्ड स्टॉक। स्टॉक, from where many petioles are arising, that is called stalk. Okay, clear everyone? Good. चलो आगे बढ़े, इंटरेस्टिंग था। सिमरन, वीडियो ऑन करो सब लोग, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ मैं। Let's move on to aerial stem, guys. Everything is properly checked and then I have put the information. Aerial stem का first modification, stem tendril. Aerial stem का first modification, stem tendril. Remember, एरियल स्टेम में जो भी मॉडिफिकेशन होता है, दैट इज ब्रॉट बाय द बड्स। ज्यादातर बड्स मॉडिफाइड होते हैं। ओके, द मेन स्टेम डज नॉट कैरी आउट, डज नॉट अंडरगो सो मच ऑफ मॉडिफिकेशंस। मेन स्टेम उतना मॉडिफिकेशन नहीं करता है, बट द बड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम, they will modify and will produce some extra parts which are required by the plants to take a support or to get some additional features and all. So यहाँ पे the very first one is stem tendril. It is not the main stem that is modifying into tendril. It is the axillary bud. Which bud? To be more precise, axillary bud. And you all know axillary buds are the buds which gives rise to leaf. So axillary bud modifies into thin wiry like structure which is highly sensitive to any solid object. मतलब किसी भी solid object को touch किया ना तो वो तुरंत वहां पे लपेट लेता है। Are you getting it? Any solid object अगर उसे टच कर लिया, that means it is very sensitive to the touch. तो अगर सपोज यहाँ पे टच किया ना तो वो यहाँ पे सीधा वो ट्रेंडल्स जो है वो वाउंड होके अटैच हो जाएगा, so that the plant will get the support to climb. That means I am talking about climbers. Yes, I am talking about climbers. Climbers are producing these type of tendrils. They help the plant to attach to some or the other support and then climb it over it. ठीक है? These are mostly found with weak stem. Obviously,
जो स्टेम वीक है, पतले है, बहुत नैरो और थिन है, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस दीज टेंड्रिल्स, ताकि वो टेंड्रिल्स की मदद से आगे आगे ऊपर और क्लाइंब कर सके. एंड ज्यादातर ये जो स्टेम्स होते हैं ना, दीज सॉरी, ज्यादातर ये जो स्टेम्स होते हैं ना, वो ग्रीन कलर के दिखते हैं हमें, प्रॉपर लाइटिश ग्रीन कलर के रहते हैं वो. Tendrils are leafless. Tendrils never produce any leaf. Very important point. It does not produce any leaf. It is highly coiled structure and it has a special adhesive glands. उसके टिप पे ना, tendrils के टिप पे adhesive glands होते हैं. So when the tendril wound around something, suppose if this is a tendril, okay, तो tendril जब देखो ऐसे support पे wound करता है ना, now अब ये wound तो खुल भी सकता है, देखो कैसे खुल गया मेरे finger में से, see how it is opening up. तो टेंड्रिल वैसे ओपन भी हो सकता है. सो व्हेन इट इज वाउंडिंग, यहाँ पे टिप पे ना, यहाँ पे ये टिप पे ना, यहाँ पे एडेसिव ग्लैंड्स होते हैं, सो दैट इट कैन प्रोड्यूस म्यूकस एंड वो यहाँ पे चिपक जाएगा. सो व्हेन इट गेट्स स्टिक टू द सपोर्ट, इट विल नॉट ओपन एट एनी कॉस्ट. ओपन ही नहीं होगा वो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, miss. है ना बच्चा? वो कॉइल हो रहा है तो कॉइलिंग तो कभी भी खुल सकता है ना, तो कॉइलिंग को चिपकाना भी तो जरूरी है. So there is an adhesive gland at the tip of the tendril which will produce sticky mucus. Okay, it will produce sticky mucus for the fixation. Now there are different types of tendrils. Axillary tendril में, to be more precise, passiflora, passion flower, common name Krishna Kamal. Common name Krishna Kamal. डाला? Okay. Now, another type of tendrils that we have seen is apical tendril. Apical tendril. Now, apical tendril में apical bud जो होता है, apical bud, apical tendril यानी कि जो stem का main terminal bud होता है, terminal, इसको terminal tendril भी कहते हैं. जो main stem का जो bud होता है, apical bud या terminal bud, that will modify into the tendrils. So the apical bud is modified and the growth is resumed by the axillary bud. Okay. Example, vitis. एक्स्ट्रा एक्सिलरी टेंड्रिल यानी कि एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड जो टेंड्रिल्स में कन्वर्ट होते हैं, उसके एग्जांपल्स है कुकुरबिटा, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन. आई रिपीट, एक्सिलरी टेंड्रिल, proper axillary tendril, passiflora, wherein the axillary bud itself is getting modified into tendrils, so it will not produce leaf. Apical tendril, wherein the terminal bud is modified into the tendrils, यानी कि स्टेम के टिप पे बड है and this bud is modifying into the tendrils, so to attach properly at any support. And extra axillary tendril यानी कि जो extra axillary buds होते हैं, they will modify into the tendrils. उसमें example है cucurbita, watermelon and grapevine. And so we see maximum number of tendrils in these species, cucurbita, grapevine में ज्यादा टेंड्रिल्स उसमें देखने को मिलता है, बिकॉज जितने भी एक्सिलरी बड्स जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किए गए प्लांट ने, वो दे कन्वर्ट देम इनटू tendrils. You can see this. Stem tendril, that is apical tendril. Example, vitis. Vitis is called wild grapes. We don't use this. Edible नहीं है ये wild grape का species है, जंगली plant. Okay, wild grapes. So this stem tendril, all right. And this is the axillary tendril, my dear students. बराबर axillary position से बाहर आ रहा है. See the position. I'll mark the position. ये देखो, proper axillary bud tendril बना रहा है. Look at that wiry structure. I mean, it's so amazing. दिख रहा है आपको? और ये देखो, ये extra axillary bud का tendril. This is extra. This is extra axillary bud ka tendril, and this is proper axillary bud ka tendril. Are you getting it? Hello? What is the Yes, I have a difference? doubt. 1 minute. Here, हाँ बोलो. What is the difference? Difference position देख. Here,
ये दो एक्सिस में से निकल रहा है देख, और ये उसके ऑपोजिट में से निकल रहा है. दिस इज वन एक्सिस, दिस इज अनदर एक्सिस. ये देखो यहाँ पे तो लीफ है, ये वाला जो है ये लीफ है, बट ये उसके ऑपोजिट से निकल रहा है. दिस इज एन एक्स्ट्रा बड, एक्सिलरी बड विच इज ग्रोइंग इनटू टेंड्रिल. प्लांट ने इसको क्यों प्रोड्यूस किया? ताकि वो टेंड्रिल बना सके फॉर अटैचमेंट. सो देयर आर टू ऑप्शंस. वन, जो एक्सिलरी बड बराबर एक्सिल्स के बीच में आता है, ओके, प्रॉपर एक्सिल्स के बीच में ग्रो होता है बड, दैट विल डेवलप इनटू टेंड्रिल. और जहां पे एक्सिलरी बड प्रोड्यूस हुआ है उसके ठीक ऑपोजिट जगह पे या उसके ठीक बाजू में एक्स्ट्रा बड प्रोड्यूस होगा एंड दैट विल ग्रो इनटू टेंड्रिल. अब समझ में आया ही? ये दो क्लासिक डिफरेंस मैंने यहाँ पे इमेज में दिखाया है, इसलिए मैंने सर्कल किया पोजीशन को. आपको पोजीशन को देख के आइडेंटिफाई करना है. ये प्रॉपर दो एक्सिल्स के बीच में से है ना, और ये उसके साइड्स में से, यानी कि एक्सिलरी बड के बाजू में से. किरण, यस किरण. मिस, अगर वो स्टेम टेंड्रिल इतना थिन है तो वो सपोर्ट कैसे देता है प्लांट को? नहीं देता है सपोर्ट, बहुत अच्छे से देता है. क्यों नहीं? प्लांट भी तो उतना वीक है ना, प्लांट भी तो उसका, प्लांट का जो मेन स्टेम है वो भी तो पतला है ना, तो उतने वीक स्टेम को सपोर्ट देना उतना काफी हो जाता है. और ये दूर दूर तक स्प्रेड नहीं करते टेंड्रिल्स किरण, जितना ऑब्जेक्ट नजदीक में रहेगा उसको ही वो वाउंड करते ताकि इट गेट्स प्रॉपर सपोर्ट टू क्लाइंब इट. नाउ लिसन, सुन रहे हो? इन फॉरेस्ट, जंगल में ये जो टेंड्रिल्स है ना, many a times these tendrils become woody tendrils. Woody, what does that mean, woody? They become hard. Yeah, they become hard. Exactly, they become hard. Wherever they are wounding it, it becomes very hard वहां पे, and it will never open it up. Can you tell me the name of that? No, miss. I know don't. you will not tell, you will not be able to tell me, so you need to find it out. Okay. Can you do that? Okay. Lioness. Wow, who said this? Ma'am Shreya. Wow, Shreya, spell it. Lianas. She is absolutely right. Wow, Shreya, कैसे पता चला? मैम वो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, नोट्स में. Great. कल कहाँ पे देखा दिया था. हुआ है? मैम सब स्टेम टेंड्रिल्स के टाइप्स में दिया हुआ है. अच्छा, एनसीईआरटी में या अपने नोट्स में, बियानीस के नोट्स में? मैम नोट्स में. कहाँ पे? नोट्स. कौन से नोट्स? बियानीस. हाँ वही तो, बियानीस के नोट्स. यस ऑफ कोर्स. लाइमस, LIAMAS, लाइमस, वुडी टेंड्रिल्स इन द फॉरेस्ट. इसके एग्जांपल्स भी होंगे श्रेया, कैन यू टेल अस? मैम याद नहीं. चलो ठीक है, तो आप सभी लोग इसके एग्जांपल्स फाइंड आउट कीजिए. सिंस आपके बुक में है तो आपको एग्जांपल्स भी ढूंढ के निकालना है. ऑलराइट, यानी कि नोट्स बहुत कम लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं. पढ़ो. हमें नोट्स मिले नहीं है. ओ मिलेंगे मिलेंगे बच्चा, मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे. ओके, डोंट वरी, सबको मिलेगा नोट्स. चलो, so lianas are the woody tendrils that we have got to know from Shreya. Thank you so much. Let's move on further. Hey guys, stem tendril clear हुआ ना? Everyone? Second, thorn. Everyone knows thorn. काटा लगा, हाई लगा. I mean, whenever we say thorn, तो हमें वो काटा वाला गाना याद आता है. Anyways, these are hard pointed structure, modified form of, again, कौन सा bird? Axillary bird. I told you, main stem उतना modify कर ही नहीं सकता है.
ज्यादा से ज्यादा उसके ब्रांचेस या उसके लीव्स या उसके बर्ड्स मॉडिफाई होंगे, लेकिन मेन स्टेम मॉडि तो अगर हम कहते हैं ना एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन, दैट डजंट मीन कि स्टेम मॉडिफाई हो रहा है, उसके बर्ड्स, उसके जो अपेंडेजेस है वो मॉडिफाई हो रहे हैं. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सो दीज आर हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर. Leaves, branches and flowers are developed on the thorns at the nodes. Okay, मतलब nodes के वहां पे nodes के वहां पे जहां से leaves और branches और flowers arise होते हैं, at the same point thorns भी produce होते हैं, thorns, and of course they provide protection against the grazing animals. So examples are Citrus bougainvillea duranta. Citrus bougainvillea duranta में, this is an example of bougainvillea, cute little thorn you can see. ओके जहां पे एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई हुआ है. हेलो, ये एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है. बोगेनविला, सिट्रस, दुरांता, नॉट सिट्रस बट बोगेनविला, दुरांता, देन रोज. ओके, जितने भी ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट्स है, व्हेन दे प्रोड्यूस थॉर्न्स, मोस्टली एक्सिलरी बर्ड. बट सिट्रस में एंड कैरिसा में अपाइकल बर्ड इज मॉडिफाइंग इनटू दी thorns. Citrus bougainvillea duranta axillary bud. Carissa में apical bud. You can see plant के tip पे produce हुआ है thorns. दिख रहा है आपको? The tip is modified into the thorns. Can you see that pair of thorns? Terminal bud. Terminal bud is produced as a thorns. Example Carissa carandus. Carissa carandus. Clear? So you should know where apical bud is modified and where axillary bud is modified. Any doubt? हाँ बेटा. What's the difference between thorn and petiole? Petiole. Petiole is this. This is petiole. ये तो लीफ की डंडी है. We call in a simple English stem of leaf. मिस लेकिन वो मॉडिफाई होके वो भी ऐसे थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर नहीं, बनाता है. तुम मिस्टेक कर रहे हो. पेटियोल नहीं मॉडिफाई होता है, स्टिप्यूल मॉडिफाई होता है. स्टिप्यूल. Stipules are also pointed structure and thorns are also pointed structure. Yes. Okay. Stipules और thorns में difference है कि stipule इतना बड़ा grow हो सकता है. Yes, stipules can grow much bigger, but thorns का एक limitation growth है. Thorns are smaller in size. Always the thorns are smaller in size. The stipules भी axillary bud से develop. हाँ, but वो axillary bud का modification नहीं है. Axillary bud के अलावा plant do produce extra pointed structure which is called stipule. Thorn क्या है? Thorn modification है bud का. Stipules is not a modification. Stipules तो prominently produce किया जाता है at the place, at the position of axillary bud. कि मतलब अगर plant को लगता है कि नहीं उसको bud के मतलब bud produce करने के बदले देखो या तो वो बर्ड प्रोड्यूस होगा, राइट, या फिर वो क्या करेंगे उसी बर्ड के पोजीशन में वो स्टिप्यूल प्रोड्यूस कर देंगे. बट इट इज नॉट अ मॉडिफिकेशन. ओके मिस, ये भी डिफेंड करने के लिए होता है ना प्लांट को? या दिस इज फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स एंड मेनली टू कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. ओके मिस, थैंक यू. हार्ड होता है ना वो, इसलिए. ठीक है, आएगा लीफ वाले में आएगा. लीफ तो बहुत ऑसम है. लीफ तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है. लीफ इज माय फेवरेट पार्ट इन एंटायर मॉर्फोलॉजी. लीफ, इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर, बड़ा मजा आता है मुझे पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा लगता है. चलो मूविंग ऑन फर्दर. एरियल स्टेम फाइलोक्लैड. दिस इज इंटरेस्टिंग. मिस 1 सेकंड, कैन यू? दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग. यस. अरे मेरा बता दिया मैंने फाइलोक्लैड का इमेज. अभी सबको पता चल गया फाइलोक्लैड मैम क्या बताने वाली है. मैं तो सरप्राइज देने वाली थी. एनीवेज, आगे बढ़े. हीर. यस मिस. कैमरा ऑफ. रिदा, दीक्षा. हाँ, दीक्षा का चालू है. सानिया.
Ma'am, I have logged in from 2 devices now. अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, It's on. हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक. Yes, yes, I will allow it to attend the lecture. Sure, Rida. Chalo, guys, can we move further? All right, aerial stem phylloclad. What is all about? Phylloclad किसके बारे में? Look at these plants. How many of you love these plants? No one? किसके बारे में है? Hello, सबको screen दिखाई दे रहा है ना? Yes, Cactus. ma'am. Cactus. Yes, Cactus, sir. these are, yes, of course. The most beautiful succulent plants के बारे में बात करने वाले हैं. Trust me, they are very beautiful. Phylloclad और क्लैडोफिल. एक बात पूछनी थी. चलो, डायग्राम में तो मेरे लेबलिंग दिखाया है, but still I want to ask you, what exactly is phylloclad? डायग्राम को देखकर आपको क्या लगता है? Phylloclad क्या है? Ma'am, the green stems which Photosynthesis. can photosynthesize. Yes, आप जो ऐसे ऐसे जो स्टेम देख रहे हो ना कैक्टस का, ये देखो, ये ऐसे जो स्टेम देख रहे हो ना आप, ये ऐसे, wherein you can see there are leaf spines on top. तो ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के से स्टेम्स है, these stems are called phylloclads. Yes, बताती हूँ, very interesting. Phylloclad और क्लैडोफिल, ये देखो, फिल और फिल, फाइलोक्लैड और क्लैडोफिल. फिल का मतलब होता है रिच इन क्लोरोफिल, यानी कि स्टेम विच इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लीफ. वाओ, लीफ तो नहीं है ये प्लांट्स के पास, तो लीफ का काम कौन करेगा? लीफ तो नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस तो करना ही है ना. So the stem is getting modified into the leaf, यानी कि stem is getting transformed into the leaf. I will not say modify. It is getting transformed into the leaf, wherein it is very rich in chlorophyll pigment, green, and instead of narrow, it becomes broad and flattened. Instead of narrow stem, जो हम लोग रेगुलर अपने घर के प्लांट्स में देखते हैं, narrow stem, okay, nice proper cylindrical stem, उसके बदले वो broad और flattened हो जाता है, with prominent distinct nodes and internodes. And nodes पे वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? branches. मैंने अभी branches ड्रॉ करके दिखाया ना वो. And these are very thick and fleshy and succulent, और इसलिए हम इनको प्यार से बुलाते हैं succulent plants. Okay, wherein they store the water. I mean, they contain a mucilage, a sticky substance, जो water को लॉस होने से प्रिवेंट करता है. The sticky substance is surrounding to the water. So if I see, yeah, अगर मैं इसके स्टेम को ऐसे कट करूं, टीएस करूं, ट्रांसफर सेक्शन करूं, I will see that this is a stem. Suppose this is the outer covering of the stem. So inside this outer covering, there is sticky substance which is present. This sticky substance is huge in amount. मतलब काफी thick होता है ये. The layer of the sticky substance is quite thick. Okay, and inside the sticky substance, there is water which is filled up. यानी कि water का पूरा retention होता है. So the water is stored, which is surrounded by the mucilage layer. So say this is water, then the yellow part is mucilage layer. तो mucilage काफी मोटा layer होता है. Getting it? Are you understanding? Aloe vera, come on guys. Aloe vera को तोड़ के हम लोग जो stickiness निकालते हैं, that is what I have shown, right? ये इतना मोटा लेयर ही तो होता है ना. वो येलो नहीं होता है, मैंने ड्रॉ किया येलो से. इट्स नाइस ट्रांसलूसेंट टाइप ऑफ ओपेक टाइप ऑफ लिक्विड दैट ओजेस आउट. एग्जैक्टली, तो ऐसा होता है. कोई भी आप ले लो सक्यूलेंट प्लांट, उनके स्टेम्स को कट करो, आपको पता चलेगा वो. ठीक है. नाउ स्ट्रक्चर वेरी करता है. इट इज flattened. I mean, the phylloclads are flattened in case of Opuntia. Okay, beautiful Opuntia. Trust me, it's one of my favorite plant. Cylindrical Euphorbia. Euphorbia, cylindrical. Ribbon-like. How are you going to pronounce this? Let me see how many of you are good in pronunciation. Phonics. Is it pronounced Newhalen Beckia?
Wow, that's great, Kiran. Yes, it is pronounced as Muhlenbeckia. Muhlenbeckia. Muhlenbeckia, ribbon like उनके structure होते हैं phylloclad का. And needle like is Casuarina. Okay, Casuarina is needle like. Wow, look at this beautiful opuntia. One of my favorite. And the flowers they bloom is amazing. You can see that flattened structure, right? Can anyone guess ये कौन सा है? ये तो सबको पता चल गया. This is opuntia. Come on. ये तो सबको पता चल गया. This is opuntia. It's proper flattened structure, broad way में. ये मैंने क्या ड्रॉ, ये वाला कौन सा दिखाया मैंने? कैन एनीवन जज, कैन एनीवन आइडेंटिफाई? देखो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने यहाँ पे एग्जांपल के साथ, तो बताओ ये कौन सा है? Euphorbia. Yes, it is euphorbia, correct. And I was having this plant for 1.5 years. ये last year मर गया बेचारा अक्टूबर में. I'm feeling so sad about it. मेरे पास ये बहुत अच्छे से इतना बड़ा हो गया था, इतना बड़ा, trust me. And it has produced a nice cute little daughter plant also. Okay, मतलब vegetative propagation करके एक छोटू सा plant, कितने सारे daughter plants भी बने थे, but वो पूरा का पूरा मर गया 2020 में. This is euphorbia and you get very commonly over here. Okay, बहुत easily मिल जाता है ये. और पंचिया को हैंडल करना डिफिकल्ट है घर में, बहुत डिफिकल्ट है. स्पेशली फ्लावर वाला तो लोगे तो वो तो जल्दी मर जाएगा, उसको प्रॉपर कंडीशन देना पड़ता है. सो ऑल दीज आर सक्यूलेंट प्लांट्स. डन? एवरीवन इज क्लियर? ओके. सबको दिखा ना फाइलोक्लैड का स्ट्रक्चर? हेलो, इसमें फाइलोक्लैड कौन सा है? ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का आप देख रहे हो, दिस इज फाइलोक्लैड. ओके, यहाँ पे भी ये जो ग्रीन सरफेस देख रहे हो, दिस इज फाइलोक्लैड. Wherever, whatever you are seeing green now, that is phylloclad. Okay. Chalo. Next is aerial stem. Fourth one, cladodes. Now you must be wondering, cladode or phylloclad में क्या difference है? Let me tell you. एक minute. What is cladode in this case? ये तो मेरे को 101% मालूम है. No one is going to give me the answer. इसमें क्लैडोड क्या दिखाया मैंने? From the leaf, right? The leaf-like structure that is coming out. It's shown. बड़ा वाला, बड़ा वाले Yeah. जो, yes, ये जो बड़े बड़े लीफ देख रहे हो ना आप, it is a stem. It is a stem. हो गया ना एकदम हक्का वक्का. That is what beauty of nature. Beauty of nature. It is a stem, my dear students. And cladode is a type of phylloclad. It is a type of phylloclad which is called as cladophyll. मतलब ये phylloclad जैसे ही है. Phylloclad में क्या होता है? Stem becomes flat and broad and becomes green in color ताकि वो photosynthesis कर सके. यहाँ पे the green branches of the plant, listening to me, the branches of the plant is becoming green and it functions as of photosynthesis because इनके जो true leaves है, that is reduced into scales or spines to control the rate of transpiration. Are you listening? ये मेन स्टेम है. फाइलोक्लैड और क्लैडोड में डिफरेंस ये है कि फाइलोक्लैड में मेन स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर फाइलोक्लैड में. लेकिन क्लैडोफिल में जो मेन स्टेम के ब्रांचेस होते हैं, ब्रांचेस, these branches modify into leaf like structure. Understood? ये डिफरेंस है. Guys, are you listening? Yes, miss. आपको मेन स्टेम तो दिख रहा है ना? देखो ना, मेन स्टेम तो सब में दिख रहा है आपको. यहाँ पे भी ये देखो, ये मेन स्टेम है, करेक्ट? तो मेन स्टेम वैसे का वैसे ही है, सिर्फ उसके जो ब्रांचेस है ना, दैट इज बिकमिंग फ्लैट ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर. मैंने एक जस्ट रफली ड्रॉ करके आपको बता दिया डिफरेंस क्या है, क्लासिक डिफरेंस. कैन आई रब?
Example, if it is one internode long, one internode only, asparagus, and two internode long, ruscus. Two internode long, ruscus. It is called butcher's broom. Now the thing which is going to appear in front of you is going to give you goosebumps. Yeah, it's going to give you a shocking experience right now. Check it out in front of your screen. Look at this beautiful ruscus plant. This name of the plant is Ruscus aculeatus. Look at this. Can anyone believe with its true eyes? Leaf is having internodes. It is producing two internodes. This is one internode. Okay, and this is second internode. दो internode है इसके पास. First internode में flower बनाया है. Can you see? And second internode में fruit बनाया है. The red color is a fruit. Don't worry, it is not edible. It is not edible. Can you imagine this? The fruit is coming out of the leaf. The flower is coming out of the leaf. Guys, this is asparagus. आपको ये जो काटे काटे लाइक ऐसे पतले पतले ग्रीन ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे ना, these are cladod. These are cladod. Only one internode. Only one internode. Only one internode. See, सब में एक एक internode है. See. मिस इनके एक्चुअल लीफ किधर होते हैं फिर? किसके बेटा? एस्परागस के एक्चुअल लीव्स आर वेरी स्मॉल. सी, हुक्ड लीफ, दे आर वेरी स्मॉल. इतने छोटे कि वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाते, और इसलिए तो ब्रांचेस ग्रीन कलर के हो रहे मोहम्मद, ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके. इन प्लांट्स को ट्रांसपीरेशन बचाना है. ट्रांसपीरेशन से बचने के लिए ये लीव्स को रिड्यूस कर देते हैं. लीव्स को रिड्यूस कर देते हैं साइज में, तो फोटोसिंथेसिस पे अफेक्ट होता है. और इसलिए फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करने के लिए वो अपने दूसरे किसी पार्ट को मॉडिफाई कर देते हैं इनटू द लीफ. लाइक इन दिस केस ब्रांचेस आर गेटिंग मॉडिफाइड इनटू द लीफ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, miss. Miss. हाँ, एस्परागस तो मिलता. हीर जरा आ तो स्क्रीन में आ तो. हीर हीर. हाँ, एस्परागस कॉमनली मिलता है. हाँ, तो मिस ऐसा और एक भी होता है ना, ऐसा ही दिखता है तो थोड़ा. आप जो एस्परागस खाते हो ना खाना बनाते वक्त, ओके, कुकिंग में आप जो वो एस्परागस खाते हो ना, दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम, जो बाहर निकलता है बाद में थोड़ा सा. the shoot, the leafy shoot which is covered with the overlapping leaves, हम उसको कट करके यूज करते हैं. इसके जो ब्रांचेस होते हैं, इसके जो ये जो ब्रांचेस है, इसको नहीं यूज करते. ओके. Yeah, somebody was asking me something. Yes, ma'am. हाँ दीक्षा. मिस, ये एस्पैरागस वही है क्या जो फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट्स में था? हाँ सेम. हाँ, तो फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट्स में तो ऑब्वियसली सेम ही होगा ना एस्परागस. यानी कि हम जो एक्चुअली खाते हैं ना, दैट इज अ रूट पार्ट. ओके. द ग्रीन कलर का वो जो पार्ट होता है, रूट पार्ट, जो ऊपर वो लीफी शूट प्रोड्यूस करता है, और फिर उसके ऊपर से ये ब्रांचेस निकलते हैं. ओके. Oops, sorry. मिस जो क्लैडोड होता है और जो एक्चुअल लीफ होता है वो डिफरेंट दिखते हैं क्या बहुत? जो क्लैडोड होते हैं और जो एक्चुअली, यस, बहुत डिफरेंट दिखते हैं. इनफैक्ट इनके तो एस्परागस के तो एक्चुअल लीव्स दिखाई भी नहीं देते. दे गेट रिड्यूस कंप्लीटली. सो ओनली क्लैडोड्स आर विजिबल, एंड क्लैडोड्स आर नाइस ग्रीन इन कलर, ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके. बट डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनी स्टोमेटा ऑन दिस क्लैडोड. आपको क्लैडोड पे कोई स्टोमेटा नहीं मिलेगा, बिकॉज उनको ट्रांसपीरेशन नहीं करना है. ट्रांसपीरेशन को अवॉइड करना है. गेटिंग इट? Yes, miss. मिस, हाँ बेटा. इससे पहले ही पूछना था लेकिन भूल गया. क्लाइंबिंग रूट्स और क्लिंगिंग रूट्स. स्टेम टेंड्रिल एक ही फंक्शन करते हैं ना? क्लाइंबिंग रूट्स
which are हाँ, also called as clinging roots. हाँ, हाँ, और stem tendrils एक support, function एक ही है, हाँ, to give a support to climb on top. लेकिन बस डिफरेंस है कि एक में रूट्स है और एक में स्टेम है. एक रूट्स हेल्प कर रहा है और इसमें टेंड्रिल हेल्प कर रहा है, दैट्स इट. ओके. तो जो क्लाइंबर प्लांट्स है ना उसके पास दोनों होंगे, टेंड्रिल्स भी होंगे और क्लाइंबिंग. एक किरण, किरण लॉजिक है ना, जो क्लाइंबर होते हैं, इफ दे आर क्लाइंबर, अगर वो क्लाइंब कर रहे हैं तो उनके रूट्स किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को या सरफेस को अटैच होंगे ही ना, तो बाय डिफॉल्ट देयर रूट्स आर कॉल्ड क्लाइंबिंग रूट्स. हाँ मिस, लेकिन उसमें और स्टेम टेंडल्स में क्या डिफरेंस रहेगा? या स्ट्रक्चर में ये रूट है और ये स्टेम है. बस उतना ही, लेकिन बाकी सब सेम है. क्या बाकी सब सेम है? एक मिनट, एक एक्सक्यूज मी, क्या बाकी सब सेम है? मतलब वो क्लाइंबिंग रूट्स का भी रूट सेंसिटिव, और वो इसमें भी वैसे ही रहेगा ना, वो एडहेसिव. रूट्स के पास एडेसिव ग्लैंड्स थोड़ी है, एंड रूट्स ग्रीन कलर के थोड़ी है. टेंड्रिल्स तो प्रोमिनेंटली ग्रीन वायरी स्ट्रक्चर्स है एंड उसके पास एडेसिव ग्लैंड्स है. आप Okay. बोलो फंक्शन वाइज दोनों सेम है. किरण, ओके. फंक्शन वाइज सेम, स्ट्रक्चरली डिफरेंट. ओके मिस. फंक्शन वाइज सेम, स्ट्रक्चरली डिफरेंट. हाँ मिस, ठीक है. क्या? हाँ, ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं किरण, जिनका फंक्शन सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है? एनालॉगस. हाँ मिस. भूल गया? तू सीबीएसई में है ना? हाँ. तेरे एवोल्यूशन के चैप्टर में पढ़े अपन ने होमोलॉगस ऑर्गन्स एंड एनालॉगस ऑर्गन्स. अच्छा, एवोल्यूशन चैप्टर नहीं पढ़ा था ना? मिस वेरी गुड. अभी पता चलेगा, जो चैप्टर्स कैंसिल किए ना 10th में, उसका लॉस अभी मालूम पड़ेगा. वेरी गुड, शाबाश. मिस हाँ दीक्षा. मिस रस्कस को बुचेस ब्रूम क्यों बोलते हैं? हाउ स्वीट, पूछा आपने. चलो गुड. Ruscus is the plant which was found like long back and मतलब 1930s के टाइम पे वो उसको आइडेंटिफाई किया गया था. एंड उस जमाने में ना यूरोपियन कंट्रीज में बुचर्स जो होते हैं, जो बुचिंग का काम करते हैं, मतलब जो बेसिकली स्लॉटरिंग का काम करते हैं, वो अपने चॉपिंग बोर्ड्स को रस्कस के स्टेम, रस्कस के जो स्टेम्स होते हैं ना, मतलब ये जो मेन स्टेम पे ये जो सारे लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस, लीफी लाइक बोला मैंने, लीफ नहीं बोला, लीफी लाइक ये जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस है क्लैडोड्स, इसका पूरा बंडल बनाते हैं एंड उससे अपने चॉपिंग बोर्ड को क्लीन करते हैं. चॉपिंग बोर्ड को, मतलब जहां पे वो चॉप करते हैं ना, उसको क्लीन करते हैं. एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बुचर्स ब्रूम. They clean their Okay. chopping boards with the bundle of stems of ruscus. ओके बताओ क्यों मैं दीक्षा? हाँ मिस वो इसलिए क्योंकि रस्कस में किसका मॉडिफिकेशन हो रहा है? ब्रांचेस का. ब्रांचेस आर मॉडिफाइंग इनटू लीफ. तो बट नेचुरली लीफ काफी थिक होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे. लीफ लाइक है ना वो, ब्रांचेस का मॉडिफिकेशन है ना लीफ लाइक में. द ब्रांचेस आर बिकमिंग फ्लैट, ग्रीन एंड color rich in chlorophyll, so they are very hard, so it becomes easy for cleaning the boards. ओके Yes, rather than using some dry stem parts of the in the form of broom, they use it this leafy part for cleaning it. क्यों? क्योंकि इसमें से कोई फाइबर्स नहीं निकलते. जो ड्राई स्टेम होते हैं उसमें से फाइबर्स निकलते हैं और वो फाइबर्स उनके चॉपिंग बोर्ड पे चिपक जाता है एंड वो फिर किसी के खाने में जाता है, किसी के मीट के साथ चला जाता है, जब वो किसी को मीट देते हैं बुचिंग करके. इससे क्यों साफ करते हैं? क्योंकि ये लीफी है. लीफी वालों के पास फाइबर्स नहीं होते प्लांट्स को. ये लीफी स्ट्रक्चर है ना, ये जो इसके ब्रांचेस है वो लीफी टाइप के हैं, इनको फाइबर्स नहीं है, सो इट बिकम्स इजी फॉर देम टू क्लीन एवरीथिंग एंड देयर विल बी नथिंग लेफ्ट ऑन द बोर्ड, चॉपिंग बोर्ड. अंडरस्टूड? ये लॉजिक था. यस मैम Here, if you are so curious about it, that why passiflora is called passion flower, check it out in your botanical website. Don't ask me. ओके मुझे इतना पता है उसको कृष्ण कमल कहते हैं. इट्स बिकॉज कृष्ण भगवान के जो हाथ में वो चक्र होता है, वो उसका फ्लावर का स्ट्रक्चर वैसा ही है, एग्जैक्टली हूबहू वैसा ही है. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ट्रस्ट मी. इट्स नाइस लैवेंडर मॉ कलर का फ्लावर
That's why it is called Krishna Kamal. So mythologically, I know it. But now if you're talking about passion flower, I don't know what kind of passion it builds up. So that you check it out of your own. Okay. Yes. Chalo guys, let's move in further. Just a second, this has got blocked. Everyone, please wait for a second. Yeah. It got freeze. Yes, everyone. Chalo. Bulbils. See what I have written on the screen. आज बहुत अजीब अजीब चीजें पढ़ने मिल रही है ना यही होता है अभी तो एनिमल स्पीशीज पे आओ तभी पता चलेगा रात को नींद नहीं आएगी you will be getting a nightmares of all the animals. All right, bulbils are called air potatoes. Yes, these are called air potatoes. That's because यहाँ पर जो extra axillary buds होते हैं ना, they become short and rounded, like they become very thick, fleshy, rounded due to storage of food. And जैसे ही वो बहुत ज्यादा heavy हो जाते हैं ना, मतलब food store कर रहे तो but natural वो heavy तो होंगे ही size में. So the moment they get heavy, they will detach from the plant and falls on the ground and it becomes a new plant. Best example, Dioscorea, wherein axillary bud is modified, okay, and agave mein floral bud is modified into bulbils. Now you understood why it is called air potatoes, because जो climbers होते हैं वो ये bulbils produce करते हैं. Are you listening to me? Logic है. Climbers, they have weak stem, they have very broad leaves. उनके roots support के लिए तो ये बेचारे food कहाँ store करेंगे? तो ये जो food produce करते हैं, they store it in the axillary bud, which because of the storage of food becomes so big in size, rounded, and जब वो heavy हो जाते हैं, they get detached from the parent plant and fall on the ground. And since it's a bud, it will give rise to a new plant. You got that? It's a bud, so it is going to give rise to a new plant. मिस ऐसे प्लांट्स ऐसे स्टेम में टोमेटोज आएगा क्या? Tomatoes are the fruits, Kiran. It's a proper true fruit. Okay. We are going to study about tomatoes in the fruit section. Okay. वो proper flower से developed हुआ है बेटा. ये तो bud है ना, ये तो bud का modification हो रहा है. So when this will fall down, it will vegetatively propagate into new plant. It's a bud. Okay, miss. Yes, that is a difference. टोमेटो And- फ्लावर्स कैसे दिखते हैं? Sorry? टोमेटो फ्लावर्स कैसे दिखते हैं? They are beautiful white color का flowers. Okay. We will study in the flower section. Okay. बस अभी जल्दी जल्दी स्टेम खत्म हो चुका है आज अपना. अपन लीफ पे आते हैं एंड देन फिर लीफ स्टडी करके अपन विल मूव ऑन टू द इनफ्लोरेसेंस. इज गोइंग टू बी ऑसम, ट्रस्ट मी. इनफ्लोरेसेंस आपका सबसे फेवरेट टॉपिक होगा एंड फ्लावर भी. ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू लव द पिक्चर्स एंड एवरीथिंग. बहुत इंटरेस्टिंग फ्लावर्स के बारे में मैंने बताया, सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया हुआ है. ओके, चलो गाइस, डन. Dioscorea, this is a Dioscorea. Since इनका कैसा स्ट्रक्चर लगभग पोटैटो जैसा मिलता है ना, that's why these are called as air potatoes. Okay. Miss, are these edible like potatoes? No dear, I don't think so. I don't know. I mean, we don't use it. We Indian don't use it, but I don't know about the other countries. I don't know. मैंने उस पे उतना ध्यान नहीं दिया. इकोनॉमिकल यूसेज पे ध्यान नहीं दिया मैंने स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया. Okay. You can check it out, Vaishnavi. You can check it out whether they are used or not. All right, guys, can we move forward?
I'm not getting a reply. Yes, miss. Yes, Yeah, miss. that's because Yes, the ma'am. stem part is completed. The stem part is completed. Yay! Happy? Finally, the stem part is completed. स्टेम थोड़ा सा बड़ा है, I know this because उसमें modification हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, underground, subaerial and aerial. That's why. So today we complete the stem part, and today we'll be starting with the morphology of leaf. Are you guys ready? The third part of our chapter, morphology of leaf. Ready? Here क्या हो गया? You're so surprised. Yes, it is a bigger chapter here. But कैसा है? अलग अलग पार्ट स्टडी कर रहे हैं ना, रूट, स्टेम, लीफ, तो ऐसा लगता है कि हम लोग अलग अलग चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, लाइक दैट. यू कैन कंसिडर दैट ऑल्सो. हाँ बोलो हीर. You search passion flower. What do you get about passion flower? It caused the death of a person due to the passion flower. He suffered the death of Jesus Christ. That Oh, name is passion flower. okay. That's why it is called passion flower. So basically he died when he died, मतलब मैं समझी नहीं exactly. He has a passion of Jesus Christ, and so he died for that passion. And why the flower is called it as? And that's why it's named as passion flower. I mean, but why? What is the connection of the flower with that? It's not written there, but it's called that. Why it is called as that? Oh, you need to search it properly, darling. You need to search it properly. You need to go deeper and deeper when you need to find out something. Okay. Chalo, morphology of leaf. Guys, leaves are nice green appendages of the shoot. Why do we call appendages? Because these are the outgrowth of the plant. Okay. All right. Mr. Kiran ने हमें कुछ लिखा है. Everyone, you can see that. Good. He has given this message to everyone. उसे text किया सबके लिए. सब लोग read करो. Roman Catholic priest of the late 1500s name it for the passion, suffering and death of the Jesus Christ. Okay. They believed that several parts of the plant, including the petal, rays and sepals, symbolized features of the passion. We need to find it out because I really believe in Jesus Christ. I'm a big fan of Christianity. अब तो मैं पक्का फाइंड आउट करूंगी. अब तो मैं छोड़ूंगी ही नहीं. अब तो पूरा खोद लेने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू स्टडी एवरीथिंग अबाउट दिस. थैंक यू किरण. इसको कॉपी पेस्ट मार लो मैं कहीं पे. कर लिया कॉपी. थैंक यू. थोड़ा और इन्फॉर्मेशन मिला, सेंड करो. हाँ करो करो. हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें. हम सिर्फ नीट नहीं पढ़ रहे, हम सब कुछ पढ़ना चाहते हैं. Okay, the passion flower individual features were found to be symbolic of the crucifixion of the Christ. Oh, or as known in biblical history, the passion of the Christ. I have. Okay, the flower has a spike protruding from the center. Yes, the flower has a spike. There are 3 spikes. Yes, symbolizing the crown of the thorns. Oh, and there are 10 petals for the 10 faithful. The 10 commandments. It's symbolizing the 10 commandments. Oh my God, look at the connection. This is so amazing. This is so amazing. I am going to study about it. अब तो मेरे से रहा नहीं जा रहा. Thank you, thank you, thank you, thank you. चलो आज का मेरा दोपहर का कार्यक्रम फिक्स. इसके ऊपर स्टडी करो. Thank you, Kiran. Thank you so much. Thank you. Wow, that was goosebumps आ गया मेरे को. Yes, miss. Thank you so much. Okay. Did you understand what it was written? आप पढ़ लेना. बाद में आप सब लोग कॉपी पेस्ट मार के पढ़ लेना. बहुत इंटरेस्टिंग सा था ये. बहुत अच्छा था. Just a second. Somebody is there at my door and my mom is on
She's gone for a bath. Yes, all right. Okay, so leaf. Leaf, green appendages of the shoot, which is mainly for manufacturing the organic food. And the process by which it manufactures the organic food is called photosynthesis. Okay, it is called photosynthesis. Now, this leaf, it develops from the leaf primordium. When I say leaf primordium, yani ki axillary bud, jab open up hota hai, it produces a small, cute little leaf. Okay, and this cute little leaf then further grows into a big leaf, which is a proper mature leaf. So when the axillary bud is producing when it is opening up into the leaf-like structure, there is a small young leaf which is formed, that is called leaf primordium. Leaf primordium. जैसे शूट कैसे डेवलप होता है प्लिम्यूल से, रिदा, शूट इज डेवलप फ्रॉम द प्लिम्यूल, वैसे मैच्योर लीफ इज डेवलप फ्रॉम द लीफ प्राइमोडियम. मतलब शूट के पहले एक छोटा सा प्लिम्यूल बाहर निकलता है, राइट? वैसे मैच्योर लीफ प्रोड्यूस करने के लिए छोटा सा लीफ बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड लीफ प्राइमोडियम. इज दैट क्लियर एवरीवन? रुजुता, है ना? हिया, हिया आप तो कुछ बात ही नहीं कर रहे हो. हिया, पवनी, दे डोंट टॉक विद अस. व्हाई? आरुषा, जील, तनिष्का, हर्षित, गुड. मिस, हाँ, मतलब वो लीफ प्राइमोडियम जो मतलब एक छोटी सी चीज रहती है जो बाद में बड़ी होती है एंड गिव्स अ लीफ. I mean it develops into a mature leaf, proper leaf. ओके. हाँ. What is the definition of leaf? Very simple. It is a dorsiventral. Hello, मुझे देखो. Dorsiventral, dorsal, ventral, dorsiventral compressed. देखो flat है, compressed. Lateral appendages. Lateral appendages मतलब मेन स्टेम बॉडी के साइड्स में प्रोड्यूस होते हैं. Lateral appendages, lateral outgrowth मैं तो बोलूं, okay, of the stem, which is produced specifically at the nodes and is specialized to perform photosynthesis. That is called leaf. So what is leaf? It is a dorsiventral compressed यानी कि flat, lateral appendages, lateral यानी कि sides में produce होते हैं stem के, produced at the nodes and is specialized to perform photosynthesis. Thin, you all know leaf is quite thin. Thin, expanded part है, मतलब पूरे plant body को अगर आप देखोगे तो leaf सबसे expanded part है. Green in color because it is rich in chlorophyll. Exogenous because bud से produce हो रहा है, stem के अंदर से produce नहीं हो रहा है, buds के through produce हो रहा है. And born at the node, born at the compulsory node पे born होता है. And exogenous यानी कि bud से arise होता है. Arise from bud. Okay. Now, axillary bud is present at the axils of leaf. मतलब यानी कि दो ऐसे stem के बीच में bud आता है. So this bud will show limited growth. यानी कि वो leaf बनाता है, and that's why leaf is having limited growth. अब चलो, leaf does not grow further and further and further and further. उसकी एक limited growth है, मतलब जब तक वो अपने proper shape और size पे पहुंच जाएगा, it will become mature. It will not grow further. It will stop growing further. And does not possess apical bud or growing point. ये बहुत important है. It does not have any growing point. यानी कि एक बार लीफ अपने प्रॉपर शेप और साइज को अटेन कर लिया, it will not develop into the further size. मतलब वो उसके पास कोई ग्रोइंग टिप नहीं है जो कंटिन्यूसली ग्रो होते ही रहेगा. Only thing is that लीफ का जैसे ही फंक्शन खत्म हो गया, मतलब लीफ, because leaf is continuously performing function of photosynthesis, respiration and transpiration. Correct? Photosynthesis और transpiration डे टाइम में होता है, रेस्पिरेशन नाइट टाइम में होता है. अब अगर कंटिन्यूसली लीफ इतने सारे फंक्शंस कर रहा है तो लीफ ओल्ड होगा, एजिंग होगा, क्योंकि ग्रोथ लिमिटेड है तो एजिंग होगा. एंड बिकॉज ऑफ एजिंग द लीफ विल बिकम ओल्ड एंड विल फॉल डाउन. व्हेन इट फॉल डाउन अगेन द न्यू लीफ विल अराइज, बट इट विल नॉट ग्रो फर्दर. बस ये पॉइंट समझो आप, ठीक है? ओके. अभी उसके पार्ट्स, guys, uske parts, we divide the leaf part into three main parts. Leaf base or hypopodium. Hypo.
लीफ बेस और हाइपोपोडियम, पिटियोल, मीजोपोडियम, मीजो मिडिल, middle, middle, and lamina, epipodium, upper or above. See how precisely we have named the parts: hypopodium, mesopodium, and epipodium. लीफ बेस, पिटियोल एंड लैमिना. लैमिना क्या, जो मेन लीफ का स्ट्रक्चर होता है ना, एक्सपैंडेड, जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, मेसोफिल टिश्यूज जहां पे प्रेजेंट है, दैट पार्ट इज कॉल्ड लैमिना. ओके, द मेन लीफ इज कॉल्ड लैमिना. Uzma, you're not writing down anything? And I'm writing down the points, but I'm also seeing it. Acha, okay. मैम हाँ किरण, वो पैशन फ्रूट का नेमिंग का एक आर्टिकल मिला, मैं सेंड करूं? पैशन फ्रूट, सॉरी सॉरी, पैशन फ्लावर, सॉरी. मेरे को ना आप व्हाट्सएप करो, Okay. व्हाट्सएप में. Okay, guys. See this. Just want to show you 3 parts. That's it. आपको सिर्फ 3 पार्ट दिखाने मुझे. Now, what do you think? Which is the leaf base? ये main stem है. Right? This is node. ये जो आपको मैंने यहाँ पे डार्क करके दिखाया ना थोड़ा सा, this is leaf base. Which is called hypopodium. This is petiole, mesopodium, जो लीफ को रेस कर रहा है, लीफ को बाहर की तरफ रेस कर रहा है, so that it can get as much as possible sunlight. And this is the lamina. ये blade है, margin जो है that is blade, and this is lamina. सेंटर में आपको ये मरून कलर का लाइन दिख रहा है? यस, दिस इज midrib. Midrib, the main vein in the leaf. The main vein in the leaf. लीफ के अंदर जो मेन मोटा सा वेन होता है ना, that is called midrib. And can you see inside? I have drawn many veins, right? All these are veins and veinlets. Veins and veinlets. ये लैमिना क्या होता है? लीफ, द एक्चुअल लीफ. ये देखिए यहाँ पे जो मैंने ऐसे पिक्चर डाला हुआ है ना, इसका ये जो सेंट्रल पार्ट है, दिस इज लैमिना. मेसोफिल सेल्स पूरा. आपने जो बेस पे जो 2 बल्ब बने वो क्या है? दैट इज अ लीफ बेस. आई विल टेल यू. पहले आप लेबल कर लो. मतलब ये मोटा सा जो मैंने यहाँ पे बनाया वही बोल रहे हो ना बेटा? हाँ लो, ये कलर कर दिया मैंने. दिस इज अ लीफ बेस जो नोड से बाहर निकलता है.
ठीक है, नोड से बाहर निकलता है। एक्सिलरी बड इज प्रोड्यूसिंग दिस लीफ ना, तो इट इज प्रोड्यूसिंग दिस लीफ फ्रॉम लीफ बेस, मतलब लीफ बेस पहले बाहर आएगा, फिर पिटियोल बाहर आएगा और फिर लीफ आएगा। Is it done? Yes, miss. Yes. Okay. We will study about the morphology of leaf next lecture. कल की टेस्ट के लिए तैयारी करो। रूट्स क्या, नेक्स्ट लेक्चर में लीफ स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीक में तो आई थिंक सो हम इनफ्लोरेसेंस और फ्लावर आधा भी कंप्लीट कर लेंगे, मतलब फ्लावर भी हो ही जाएगा। आई मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट वीक में फ्लावर तक पूरा कंप्लीट कर दूं। देन वी आर लेफ्ट विद फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्रूट्स और सीड्स बहुत छोटा है, जल्दी हो जाएगा। सो आवर चैप्टर विल गेट ओवर, सो आवर फर्स्ट चैप्टर विल गेट ओवर वेरी सून एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। Connected the morphology, we need to study anatomy quickly. उसी के connection में है तो उसी का मतलब since we are studying about flowering plants, we need to understand its anatomy also. So ये साथ में हम लोग करने वाले। So anatomy उसके बाद का next chapter होगा anatomy. Okay, उसके बाद देखेंगे कौन सा chapter पढ़ना है। ठीक है, हो गया, बस हो गया, plants बस हो गया, तो फिर थोड़ा कोई human का ले लेंगे या animal का ले लेंगे। ठीक है, चलो, okay, bye all, take care, all the best. Zoology कौन पढ़ाएगा, आप ही पढ़ाओगे क्या? Zoology का आप ही पढ़ाओगे पार्ट? आपकी मर्जी, आपको चाहिए। मैं एक्चुअली 2 टीचर्स है इसीलिए पूछ रही हूँ, मतलब आप ही पूरा पढ़ाओगे या फिर वो? I don't know. Chani ma'am is another bio ma'am, new ma'am. Right, Been yeah. introduced. So what she's also teaching both botany and zoology. I also teach both botany and zoology. We'll see Okay, what I have to teach and what she has to teach. But इतना तो sure है, genetics मैं ही पढ़ा रही हूँ. That is for sure. मैं बोल रही हूँ 101%। जेनेटिक्स पढ़ाने के बाद ना सबका दिमाग जो घूमेगा, सब बोलोगे मैम हमको जेनेटिस्ट बनना ही है। दैट इज फॉर श्योर। मतलब जेनेटिक्स तो मैं आप लोग के आत्मा के अंदर घुसाने वाली हूँ, इतने जोरों शोरों से पढ़ाने वाली हूँ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स तो कोई हाथ नहीं लगाएगा, दैट इज फॉर श्योर। आई एम born for genetics and I'm meant for teaching the genetics. मैं इतना तो कॉन्फिडेंटली अब बोल ही सकती हूँ 16 साल की टीचिंग के बाद। Yeah, चलो, bye all, take care and all the best. DPP 1 o'clock को आ रहा है, sharp 1 o'clock को DPP आ रहा है। Okay, चलो, bye, all the best for test. Bye ma'am, thank you. Bye, miss. Thank you.